Ms. Salima, for the introduction. I am sure most of you might have attended my sessions in the past, and I know most of you, and most of you know me. Walaikum assalam, Mehjabeen. I can read all your chats, and whatever you're writing in your chat boxes, I will respond to it. It is going to be an interactive session, so we're going to start with COVID vaccination and important things which are very important for all the general practitioners to know. A lot of people might be asking you about vaccinations, which vaccine is the best, whether to vaccinate or not. A lot of people still are afraid to get themselves vaccinated. Few people who have chronic diseases, they are afraid to get themselves vaccinated. Then they would keep on asking you, what is the efficacy of this vaccine? What are the side effects of that vaccine? And as a general practitioner, I think it's very, very important for you all to know what to expect out of your patients, your relatives, which questions to expect and how to answer them, what to do in case a patient is of a chronic disease. What if somebody is immunosuppressed? What if somebody is on a steroid? What if somebody is on an immunosuppressant? How are you going to address those patients, and what vaccination is the best for them? Neelam, you can't hear my voice. Can I please ask all of you if all of the other people can hear my voice? So probably there's a problem with your connection, Neelam. What about the others? Can all of you hear my voice? Neelam is saying she can't hear me, but Neelam, other people can hear me. So there's a problem with your connection. Please sort it out. So we're going to start off with the objectives of today's session. So first of all, we're going to talk about COVID vaccinations, in the efficacy, mode of action of various COVID vaccines, which are available in Pakistan, indication and contraindication, and not only in Pakistan. I'm sure that these are the same vaccines which are available all over the world. So it's just a generic sort of presentation. Use of COVID vaccines in special populations, which is like patients with chronic diseases, patients who are immunosuppressed. Availability of COVID vaccines in Pakistan, which ones are available, which one can you get, and which one should you ask your patients to get. Adverse effects of COVID vaccines, and CDC and World Health Organization recommendations for various COVID vaccines. So we're going to all learn about all these things, and please keep your interaction there. I want you all to be speaking. I want you all to be writing in your chat boxes so that I can continue to answer whatever queries come into your mind. So please don't keep your queries to yourself. You can keep on asking me, and I'm going to answer you as I go ahead with my session. So let's move on. Assalamu alaikum, Uzair. I think this is the first time you're taking one of my sessions. Good to have you with us. Family medicine, what's new? So we're going to see what's basically new, what happened in the last 1 year with the family medicine specialty, and there's some good news coming your way. So I'm going to tell you a few things which are new for the last 1 year, and we're going to see how we could use it best in our own interest and in the interest of the country, primary care healthcare in the country. So let's come to the different COVID vaccines which are available. So I would like to tell you the mode of action of the vaccines which are generally available for COVID. It's important to know the mode of action because आजकल सवालात बहुत नए आने लगे हैं. I hope all of you understand Urdu. Please, if any of you does not understand Urdu, if somebody is not from Pakistan and speaks a different language other than Urdu, please let me know so that I don't keep on speaking in Urdu here and there. So basically you need to know the mode of action, because अब जो सवाल आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते. पहला डोज ये लगाया है तो सेकंड डोज दूसरा ये वाला लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते. तो अगर आपको मोड ऑफ एक्शन का अंदाजा होगा ना, so you will be in a better position to answer those questions कि सेकंड वैक्सीन दूसरी वाली लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए. तो सबसे पहले तो एक इनएक्टिव
वायरल वैक्सीन होती है, जैसे कि जो है वो IPV की होती है ना, जो पोलियो वायरस की इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन होती है, तो उसी तरीके से एक वायरस है कोविड का, उसकी पैथोजेनिसिटी खत्म हो जाती है, सो इट कैन नॉट रेप्लिकेट इन योर बॉडी बट इट डज प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो एक वो वैक्सीन होती है जिसके अंदर इनएक्टिव वायरस डाला जाता है। वालेकुम अस्सलाम सादिया, गुड टू हैव यू। एंड ये जो इनएक्टिव वैक्सीन है, ये जो है वो हमारे जो यहाँ पर जनरली अवेलेबल है, जो पाकिस्तान में ज्यादातर लगाई जा रही है, साइनोफार्म एंड साइनोवैक, द चाइनीज वैक्सीन, दीज आर द इनएक्टिव vaccines. And how does it work? Uses a form of the virus that has been inactivated or weakened. तो एक weak virus है जो कि पैथोजेनिक नहीं है, which cannot replicate but it can produce an immune response, ठीक है। तो ये similar vaccines as you can see, cholera, polio, MMR, yellow fever, ये सारी inactive vaccines होती है। तो ये इसी तरह की एक वैक्सीन जो चाइनीज साइनोफार्म साइनोवैक है, ये वो वाली वैक्सीन है, ठीक है। अच्छा, फिर देन वी हैव द सेकंड फॉर्म ऑफ वैक्सीन जो कि वायरल वेक्टर है। वायरल वेक्टर की वैक्सीन में क्या होता है कि इसमें दिस इज अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन। इसके अंदर जो कोविड का जो DNA है वो एक और दूसरे वायरस में जो कि लेस पैथोजेनिक है, जैसे कि एडिनो वायरस, ठीक है। एडिनो वायरस भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करता है। सो एडिनो वायरस के अंदर कोविड का जो है वो आप जेनेटिक मटेरियल इंजीनियर करके और फिर वो एडिनो वायरस जो है वो एज अ वैक्सीन आप इंजेक्ट करते हो, तो वो भी वैसा ही इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है आपकी बॉडी में जैसे कि कोरोना वायरस या कोविड वायरस करेगा। तो व्हेन that virus actually comes in, तो आपके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज होंगी, आपके पास ऑलरेडी इम्यून रिस्पॉन्स आपका एक्टिव होगा टू फाइट अगेंस्ट दैट वायरस, ठीक है। सो एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जिसमें स्पुतनिक, एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड की जो है वो है कैंसाइनो, जॉनसन एंड जॉनसन, ये सारी जो है वो वायरल वेक्टर वैक्सीन है। सो कैंसाइनो, इफ यू नो, ये न्यू लेटेस्ट जो है वो एडिशन जो हुआ है पाकिस्तान में, कैंसाइनो आई है, और ये जो है वो वायरल वेक्टर वैक्सीन है। और दूसरी जो वैक्सीन है वो जनरली जॉनसन एंड जॉनसन यूके में लगी है। एस्ट्राजेनेका आपको पता है कि जो है वो उसके बड़ा यूरोप में लगी थी, एंड अ फ्यू कंट्रीज जो है वो स्टॉप्ड वैक्सीनेटिंग विद एस्ट्राजेनेका बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट व्हिच इमर्ज, व्हिच वाज क्लॉटिंग, है ना। तो ये जो है ना वायरल वेक्टर वाली वैक्सीन है। फिर देन वी हैव RNA वैक्सीन, जो mRNA आजकल बहुत ज्यादा जो हम सुन रहे हैं, जो हमने पहले इतना सुना नहीं था mRNA वैक्सीन्स के बारे में। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ रिलेटिवली न्यूअर फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन जिसमें RNA, जो मैसेंजर RNA होता है, mRNA, वो इंजेक्ट किया जाता है, और वो mRNA जो है वो आपके बॉडी में जाके एक प्रोटीन सेल से बनवाता है, एंड व्हेन दैट प्रोटीन फॉर्म्स, तो उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, और वो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इट इज एक्टिव अगेंस्ट दी कोविड वायरस, ठीक है। तो RNA वैक्सीन जिसमें ये जो फाइजर की और मॉडर्ना वैक्सीन और क्यूरेवैक, ठीक है, तो ये वाली वैक्सीन जो कि है ये mRNA वैक्सीन है, ठीक है। सो दीज आर रिलेटिवली न्यूअर वैक्सीन। इसके अलावा इनएक्टिवेटेड वायरस की वैक्सीन तो पहले भी यूज की जाती थी, और अब जो है वो ये चाइनीज वाली इनएक्टिव वायरस की वैक्सीन है। एंड देन द थर्ड वन इज अ वायरल वेक्टर वैक्सीन, जिसमें एक डिफरेंट वायरल वेक्टर के अंदर आप कोविड के जो है वो जेनेटिकली इंजीनियर करके उसको एक ऐसा वायरस बनाते हो जो कि इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है आपकी बॉडी में, और एट द सेम टाइम इट्स नॉट पैथोजेनिक, इट डज नॉट replicate and produce the same symptoms as COVID, ठीक है। सो ये तीन वैक्सीन मेनली, ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन है जो कि यूज हो रही है। तो लेट्स सी कि जो है वो क्या इसको जो है वो क्या इनके एडवांटेजेस है, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है। सो लेट्स लुक एट दोस। सो इनएक्टिवेटेड जो वैक्सीन है, जो कि मैंने एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड यहाँ पर एज यू कैन सी साइनोवैक, साइनोफार्म जो है ये वाली वैक्सीन, इसमें जो है इसका फायदा ये है कि इट इज अ स्टेबल वैक्सीन, इट डज नॉट कॉज डिजीज, लेकिन इसकी शॉर्ट मेमोरी होती है।
Okay, Uzair, you got the CanSino vaccine. It's a single dose. We are coming to it कि किसके कितने doses होते हैं, ठीक है? So I think most of us health workers जो जिन्होंने शुरू में लगाया, जो अच्छे बच्चे बने और जिन्होंने पहली वैक्सीन जाके लगा ली, वो ज्यादातर साइनोफार्म और साइनोवैक लगी है ना, और जिन लोगों ने डिले किया थोड़ा सा और अब जाके लगाई तो वो CanSino लग रही है, right? So inactive vaccine, Sinopharm, Sinovac, it needs booster. ठीक है, इसमें बूस्टर की जरूरत होती है, तो हो सकता है कि हमने भी वैक्सीन लगाई है, हमें हर साल में एक दफा इसकी वैक्सीन लगानी पड़े, ठीक है? तो साइनोवैक साइनोफार्म में बूस्टर्स की जरूरत होती है, या हो सकता है 6 महीने के बाद हमें बूस्टर्स लगे। फिर वायरल वेक्टर जो वैक्सीन होती हैं, इसकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है, ठीक है? तो वायरल वेक्टर वैक्सीन में जैसे कि कैनसाइनो है, जॉनसन एंड जॉनसन वाली है और एस्ट्राजेनेका है, इसमें जनरली जो है वो एक ही डोज काफी होता है, ठीक है? सो कैनसाइनो का भी एक डोज है, जॉनसन एंड जॉनसन का भी एक ही डोज है, क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है, ठीक है? इस वजह से इसका एक डोज जो है वो काफी होता है, सेकेंड बूस्टर लगाने की जरूरत जनरली नहीं होती है। फिर आरएनए वैक्सीन है, इसकी भी शॉर्ट मेमोरी होती है, इस वजह से इसमें भी बूस्टर लगाना पड़ता है, तो इसीलिए इनके दो डोजेस होते हैं, कैनसाइनो के और जॉनसन एंड जॉनसन का जो है वो एक ही डोज होता है। I can still see people entering the session. थोड़ा सा हमने स्टार्ट कर दिया है। वी आर टॉकिंग अबाउट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन। एक इनएक्टिवेटेड वायरस होता है, एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, और थर्ड जो है वो आरएनए वैक्सीन है। वालेकुम अस्सलाम सबीन, गुड टू हैव यू। सो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन। और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में हमारे पास साइनोफार्म और साइनोवैक है। वायरल वेक्टर वैक्सीन में हमारे पास जो है वो एस्ट्राजेनेका है, स्पुतनिक है, कैनसाइनो है और जॉनसन एंड जॉनसन है। और आरएनए वैक्सीन में मॉडर्ना है, फाइजर है और क्यूरेवैक है, ठीक है? तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स है। नाउ लेट्स सी कि इसमें जो है वो ये जो है वो दिस इज जस्ट टू टेल यू कि कौन सी वैक्सीन कौन सी टाइप्स की है, एज यू कैन सी हियर। एंड शॉर्ट मेमोरी होती है आपके इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की, इसका मतलब है साइनोफार्म और साइनोवैक वाले लोगों को बूस्टर की जरूरत है, 2 डोजेस लगते ही हैं कम से कम। जो वायरल वेक्टर वैक्सीन होती हैं उसकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है, इसीलिए उसका एक ही डोज काफी होता है। और आरएनए वैक्सीन की भी शॉर्ट मेमोरी होती है, इस वजह से उसके 2 वैक्सीन के डोजेस इफेक्टिव होते हैं। ये जो है वो इसके स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स है। ये सिर्फ आप लोगों को बताना इसलिए जरूरी है कि कितनी भी अच्छी वैक्सीन हो, अगर उसको स्टोरेज उसका ठीक से ना हो तो वो इफेक्टिव नहीं होगी, वो खराब हो जाएगी। सादिया, आई एम कमिंग टू द एफिकेसी। यू गोइंग टू अभी आहिस्ता आहिस्ता जरा थोड़ा थोड़ा करके डोज ले, इतना सारा एक साथ ना खा जाए, तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, राइट? सो ये जो है वो वैक्सीन की स्टोरेज पे अगर आप देखो ना, तो एमआरएनए जो वैक्सीन है ना, मॉडर्ना, फाइजर, इनकी जो स्टोरेज है -25, -15 डिग्री सेंटीग्रेड, -80, फाइजर की देखिए -60 to -80 है। अब इसमें देखिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हुआ स्टोरेज में तो ये होते हुए भी इनफेक्टिव हो जाएगी। तो भले आप भागते रहे फाइजर के पीछे, लेकिन अगर उसके स्टोरेज में प्रॉब्लम्स हुए तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इफेक्टिव। ऑन द अदर हैंड साइनोवैक, साइनोफार्म 2 to 8 डिग्रीज मतलब रेफ्रिजरेशन पे भी काम कर जाती है, ठीक है? रेफ्रिजरेट भी आप उसको कर सकते हैं। सो इस वजह से जो है वो ये वैक्सीन आर रिलेटिवली इजियर टू मेंटेन द कोल्ड चेन, ठीक है ना? तो इस वजह से हमारे पास जो इनिशियली है वो यही वाली वैक्सीन ज्यादा आई थी, बिकॉज इसको इजी था इसकी कोल्ड चेन मेंटेन करना, राइट? एस्ट्राजेनेका की भी कोल्ड चेन आप देखिए 2 to 8 डिग्रीज पे इट कैन सर्वाइव, राइट? So let me ask you this best choice question, and which of the following is true regarding COVID vaccine? And this is one best answer. You can write your answers in the chat boxes. Let me see how many of you know the answer to this question. CanSino is a Chinese vaccine with 2 doses. Sinovac and Sinopharm are Chinese vaccines with 2 doses. AstraZeneca should not be given as first choice due to its adverse effects. Pakvac is a Pakistani version of CanSino. Only Pfizer and Moderna vaccines may be given in patients with chronic diseases. तो इसमें से one best answer तो है ही, इसमें से 2 best answers है। I think 2
आंसर्स आर एकदम सही? बताइए, 2 आंसर्स बता दीजिए. B is the correct answer. So Sinovac and Sinopharm are Chinese vaccines and both of these have 2 doses. That's right. एक और सही आंसर इसमें ये है कि PakVac is a Pakistani version of CanSino. ठीक है, ये भी सही है. Right? So B and D are the correct answers. That's right, Astra. Okay, so इसमें जो है वो PakVac is a Pakistani version of CanSino और and Sinopharm and Sinovac are Chinese vaccines with 2 doses. ठीक है, ये दोनों सही है इसमें. So let's see कि इसकी इंडिकेशंस क्या है. अब देखिए ये जो फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन है ना, ये तीनों वैक्सीन CDC अप्रूव्ड है. ठीक है, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल USA, और ये तीनों US में जो है वो यूज होती हैं. इसमें जो है वो मोर देन 18 years जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना का मोर देन 18 years के लिए इंडिकेटेड है, और फाइजर जो है वो अब मोर देन 12 years में भी it is being given and it is shown to be safe through research. ठीक है, evidence shows कि it's safe. इसमें जो है वो मॉडर्ना और फाइजर के 2 शॉट्स लगते हैं because both of these are mRNA vaccines with short immunity. ठीक है, और इसकी एफिकेसी देखिए 94 to 95% है. ठीक है, सो जितनी भी स्टडीज आई है उसमें एफिकेसी के हिसाब से देखा जाए तो फाइजर और मॉडर्ना सीम्स टू बी मोस्ट इफेक्टिव, बट द इशू इज कि इसकी कोल्ड चेन को मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इट कैन बी इनइफेक्टिव. ठीक है, जॉनसन एंड जॉनसन का 1 डोज लगता है बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स अ वायरल वेक्टर वैक्सीन. इंडिकेशन इज मोर देन 18 years of age and it is 66.3% effective. ठीक है, again these are a combination of a few studies which are quoted by CDC, और CDC ने ये हमें फिगर्स दिए हैं एफिकेसी के. साइनोफार्म और साइनोवैक दोनों जो है वो आप देखिए उसकी एफिकेसी 79% है साइनोफार्म की, जो जनरली आजकल लग रही है. साइनोवैक की 50% एफिकेसी अगेंस्ट सिम्प्टोमेटिक डिजीज एंड 100% अगेंस्ट सिवियर डिजीज. सो इट सेज दैट इट रिड्यूसेस द सिवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन. ठीक है, इसके दोनों के 2 शॉट्स लगते हैं 2 to 4 weeks अपार्ट. देखिए बहुत बुरा नहीं है ये. ठीक है, 79% इज अ गुड परसेंटेज. अच्छा खासा प्रिवेंट कर रही है. ठीक है, अच्छी खासी इफेक्टिव है, तो अपने आप को डिग्रेड नहीं करें. अगर फाइजर नहीं भी लगी है इट्स फाइन. ठीक है, क्योंकि फाइजर की कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है तो 95% से उसकी एफिकेसी आई एम श्योर साइनोफार्म से भी बहुत नीचे आ जाती होगी. राइट, सो इट्स इम्पोर्टेंट. सो हर चीज को जो है ना वो सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना किया करें और कॉमन सेंस भी अपना यूज किया करें. एस्ट्राजेनेका के 2 डोजेस लगते हैं, 12 weeks अपार्ट लगते हैं. जल्दी भी दे सकते हैं, 4 weeks तक दी जा सकती है. यहाँ पर पाकिस्तान में इट इज इंडिकेटेड आफ्टर 40 years of age, और वो इसलिए बिकॉज देयर वर अ फ्यू केसेस जो कि बाहर रिपोर्ट हुए थे यूरोप में ऑफ ब्लड क्लॉट्स. ठीक है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, जिसकी वजह से नाउ इट इज इंडिकेटेड हियर आफ्टर 40 years of age. ठीक है, बट स्टिल उसके साइड इफेक्ट्स उतने नहीं है जितनी उसका फायदा है. तो रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स हम देखें तो बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, रिस्क का जो इंसिडेंस है वो बहुत कम है. हाँ, किफायत आप कह रहे हैं कि फर्स्ट डोज वो साइनोवैक दे देते हैं और सेकंड डोज साइनोफार्म दे देते हैं. बेटा देखो प्रॉब्लम ये हो रहा है किफायत के अवेलेबिलिटी का इशू हो रहा है. वो जब अवेलेबल नहीं होती ना एक वैक्सीन तो दूसरी दे सकते हैं. लेकिन मैं आपको बताऊं कि मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन जनरली WHO ने इंडिकेट किया है कि मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन इज नॉट अ गुड ऑप्शन राइट नाउ, क्योंकि वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ रिसर्चेस व्हिच लुक्स एट how efficacious would be a vaccine if it's given as a second dose and the first dose is of another vaccine. इस वजह से हमें एविडेंस नहीं है ना, इसीलिए इट्स नॉट अ गुड आइडिया. लेकिन अगर आप साइनोफार्म और साइनोवैक को देखें ना तो दोनों का मोड ऑफ एक्शन एक ही है, दोनों इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है. सो प्रोबेबली जब मोड ऑफ एक्शन एक ही है तो एक को दूसरे की जगह एज अ बूस्टर यूज किया जा सकता है. दैट इज व्हाट योर कॉमन सेंस सेज.
ठीक है ना। कॉमन सेंस थियोरेटिकली जब आप दो वैक्सीन का मोड ऑफ एक्शन एक ही है तो फिर यू कैन यूज इट इंटरचेंजेबली। तो इसी वजह से जब अवेलेबल नहीं होती है तो फर्स्ट वैक्सीन वो दे दी जाती है और सेकंड वाली दूसरी दे देते हैं, लेकिन मोड ऑफ एक्शन इज द सेम। Adia, I'm coming to the safety and pregnancy and everything. Just hold on, ठीक है बेटा? Okay, so एस्ट्राजेनेका एंड देन फाइनली ये जो कैनसाइनो है, कैनसाइनो का जो पाकिस्तानी वर्जन है जो कि चाइनीज ने हमें हेल्प किया है बनाने में, दैट इज पाकवैक। ये दोनों का एक एक सिंगल शॉट है इसका, और आप इसकी एफिकेसी देखिए, बुरी नहीं है इसकी भी। 75% सिर्फ एक डोज की एफिकेसी है, विच इज नॉट बैड। स्पटनिक जो है वो रशियन वैक्सीन है। इट इज also a recombinant viral vector vaccine. It has a good efficacy. इसके दो डोजेस भी हैं और इसके दोनों वैरायटीज आती है। इसकी दो वैरायटीज है वैक्सीन की, एक 2 डोजेस वाली है और एक डोज वाली है, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों जो है ना, गुड इवनिंग अशरफ, गुड टू हैव यू। आपने देर से ज्वाइन किया प्रॉबेबली, सो यू हैव मिस्ड अ फ्यू थिंग्स बट स्टिल। अच्छा, पाकवैक और जो स्पटनिक है ना, ये WHO और CDC दोनों से ही अभी तक अप्रूव नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इसको डिसअप्रूव किया हुआ है। इट्स जस्ट दैट कि ये दोनों ही अप्रूवल के लिए गई हुई है, लेकिन अभी तक WHO ने इस पे डिसीजन नहीं लिया है। बट दैट डजंट मीन कि इट डजंट वर्क। इस पे बहुत सारा डेटा है एंड द डेटा इज वेरी पॉजिटिव। इट शोज दैट दीज वैक्सीन्स आर एफिकेशियस, but it's just that WHO has not taken a decision till the end of June 2021. WHO ने अब तक पाकवैक, कैनसाइनो और स्पटनिक पे डिसीजन नहीं लिया। वालेकुम अस्सलाम आसिफ, गुड टू हैव यू। ओके, सो एक जब आप वैक्सीनेट कर लेते हैं तो कब तक आप ये कह सकते हो कि नाउ आई एम इम्यून, मतलब मैं रिलेटिवली आई एम इम्यून देन अदर पीपल हु आर नॉट वैक्सीनेटेड। नॉट दैट यू कैन जस्ट रिमूव योर मास्क एंड यू कैन जस्ट रोम अराउंड फ्रीली थिंकिंग कि अब आपको पता है कि नए नए वायरस की वैरायटी भी आ रही है, डेल्टा वायरस आया हुआ है, सो यू कैन नॉट बी श्योर कि अब दूसरा जो नया वायरस आ रहा है उससे आपकी वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करिए या नहीं। सो यू शुड ऑलवेज फॉलो दी SOPs, लेकिन स्टिल रिलेटिवली आप इम्यून 2 हफ्ते के बाद आफ्टर द सेकेंड वैक्सीन हो जाते हैं। सादिया, पाकवैक वैक्सीन इज रेडिली अवेलेबल, हर गवर्नमेंट के उसमें लगाई जा रही है। मैं आपको उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी बताती हूँ जो अभी तक उन्होंने जिनके लिए अप्रूव नहीं किया है या किनको लगाई जा रही है। वी आर गोइंग टू कम टू इट, ठीक है। सो CDC has approved Pfizer, Moderna and J&J, ठीक है, क्योंकि CDC एक US का डिजीज कंट्रोल सेंटर है, तो जाहिर है कि US में जो यूज हो रही है ये वो वाली पर इन्होंने वो किया है जो वहां पर अवेलेबल है। तो फाइजर, मॉडर्ना, J&J पे सबसे ज्यादा ट्रायल्स हुए हैं, सबसे ज्यादा उस पे जो है वो रिसर्च हुई हुई है। इस वजह से ये तीनों आर रिलेटिवली कंसिडर्ड टू बी सेफर एंड एफिकेशियस, ठीक है। WHO has approved Pfizer, Moderna, J&J, तो ये तीन तो की ही है उन्होंने, लेकिन इसके साथ साइनोवैक, साइनोफार्म और एस्ट्राजेनेका भी WHO अप्रूव्ड है। As I said, स्पटनिक और पाकवैक या कैनसाइनो अभी पाइपलाइन में है, not approved yet, but probably they're going to be approved soon. So COVID-19 vaccines are safe for most people 18 years of age and older, including those with pre-existing conditions of any kind, including autoimmune disorders. These conditions include hypertension, diabetes, asthma, pulmonary, liver, kidney disease, as well as chronic infections that are stable and controlled. ठीक है, so किसी भी chronic disease में absolute contraindication नहीं है किसी भी vaccine की. So please ask your patients to go ahead with the vaccines. They need not be scared of the vaccines. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने vaccines लगाई हैं chronic diseases के साथ, and alhamdulillah, from my experience also, I have seen that my elderly patients who got themselves vaccinated survived the infection much better than before. So I would say that please ask your patients to get themselves vaccinated. और अगर तुम लोगों में से कोई भी vaccinated नहीं है, doctors में से, तो I think it's a crime. I would say it's a crime not to get yourself vaccinated. It's just not fair with other people कि आप लोग doctors हो के इतना public sort of exposure कर
रहे हैं, अगर आपसे किसी को लगेगा तो सोचिए कि कितनी आपके लिए जो है वो एक बुरी बात हो जाएगी। सो प्लीज गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। आमना, सिवियर स्किन एलर्जीज के साथ भी, अस्थमा के साथ भी ये वैक्सीन इंडिकेटेड है। इस वैक्सीन में सिर्फ एक जो है वो एस्ट्राजेनेका जैसे है, उसमें पॉलीसॉर्बिटॉल यूज होता है, जो कि एज अ सॉर्ट ऑफ एडजुवेंट यूज होता है। उसके अंदर एक मटेरियल है, उससे अगर किसी को नॉन एलर्जी है तो वो आप अवॉइड करिए, वरना एज सच कुछ भी नहीं है। वालेकुम अस्सलाम अरूसा, एनी क्वेश्चंस यू हैव? कोई भी सवाल हो प्लीज करते जाइए चैट बॉक्सेस में। आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चंस, व्हाटएवर यू आर आस्किंग मी आई एम आंसरिंग इट टू यू, सो प्लीज कंटिन्यू योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्सेस, राइट? तो गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड गाइस, सारे डॉक्टर्स प्लीज वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू टू से दैट after every 2-3 slides, I guess. So which of the following is an indication to delay COVID vaccine? चलिए जी, इसका जवाब दे दीजिए। आदिया, SLE के साथ भी लगा सकते हैं, स्टेरॉइड्स का मैं अभी बता रही हूँ आपको, ठीक है? मैं अभी आपको सारी चीजें बता रही हूँ, इंडिकेशन ये इम्यूनोसप्रेसेंट वाली सारी चीजें। इसका जवाब दीजिए जी। Which of the following is an indication to delay COVID vaccination? This is the one best answer. इसका एक ही जवाब है जी। अरीबा, प्रेग्नेंट फीमेल्स पे मैं आ रही हूँ, ठीक है? अभी हमने वो कवर नहीं किया है, मे बी यू जॉइंड इन लेट, बट आई विल कवर दैट। सो असरा इज सेइंग सी, others are saying A. So severe COVID infection 2 weeks back, now stable, is not a contraindication, beta. A contraindication is only having current fever of 39 degrees centigrade, ठीक है? So this is the right answer. What about post-dengue hemorrhagic stroke patient who have moderate residual functional ability? Of course, you can get it done. Platelets कम नहीं होने चाहिए अगर एस्ट्राजेनेका लगाने जा रहे हैं। एस्ट्राजेनेका के अलावा कोई भी वैक्सीन इसमें लगाई जा सकती है, ठीक है सादिया? So general contraindications पे आ जाते हैं। Is there any value to checking immune response? No need to check immune response. कोई जरूरत नहीं है इम्यून रिस्पॉन्स चेक करने का, क्योंकि इम्यूनिटी अगर आपकी एंटीबॉडी शो नहीं भी होती है तभी भी आप जो है वो इम्यून हो सकते हैं। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपकी एंटीबॉडी शो हो, सो देयर इज नो इंडिकेशन। सिवियर स्ट्रोक, पैरालाइज हो गया, अब स्टेबल है, डेफिनेटली दिस इज अ पेशेंट फॉर कोविड वैक्सीन। इनफैक्ट इसको जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि अगर इसको इन्फेक्शन हुआ तो ही मस्ट बी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ऑलरेडी, हिज इम्यून सिस्टम विल नॉट बी एबल टू टेक अप एन इन्फेक्शन लाइक कोविड, तो इसको वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए बेटा, ठीक है? सो जनरल कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। इंडिविजुअल्स मिक्सिंग अप वैक्सीन की नदीम हम बात करेंगे, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट, इसका ये भी अभी आने वाला है। एंटीबॉडीज नॉट सीन, देन हाउ वन इज इम्यून। सो आमना, आपने सुना है हेपेटाइटिस बी में भी ऐसा होता है कि हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीन शो नहीं हो रही होती है, लेकिन स्टिल यू आर इम्यून, तो उसमें एक बूस्टर लगाते हैं तो अचानक से एंटीबॉडीज शो होनी शुरू हो जाती है। सो हमेशा जो है ना एंटीबॉडीज शो जरूरी नहीं है हो रही हो, ठीक है? सो देयर आर अ फ्यू एंटीबॉडीज जो आपके ब्लड में पिकअप तो नहीं होती है, लेकिन होती है वो, ठीक है? सो वो एक मेमोरी में होती है आपके बॉडी के, सो स्टिल यू आर इम्यून। तो जरूरी नहीं है कि एंटीबॉडी शो हो ही एवरी टाइम, इसीलिए देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ गेटिंग कोविड एंटीबॉडी आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेटेड। हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट बट नो सिम्टम्स, कैन ही गो फॉर वैक्सीनेशन और गेट PCR डन? अगर बेटा सिम्टम्स नहीं है तो आई वुड रेकमेंड कि जो है वो एक आध हफ्ता वेट कर लीजिए और फिर वैक्सीन लगा लीजिए। दैट वुड बी अ बेटर वो, कि अगर कोई सिम्टम्स आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो एक हफ्ते के बाद आप वैक्सीन लगवा लीजिए। Which vaccine is good for patients with psychosis? बेटा साइकोसिस का तो कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होने से ताल्लुक नहीं है ना, सो कोई भी वैक्सीन लगाई जा सकती है इनको। और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में भी कोई भी रुमेसा वैक्सीन लगा सकते हैं, इसमें भी कोई किस्म की जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है टू एनी वैक्सीन कैन बी गिवन, ठीक है? अच्छा, जनरल कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? इंडिविजुअल्स हैविंग फीवर एट द टाइम ऑफ कमिंग फॉर वैक्सीनेशन, और इट कैन बी रीस्केड्यूल्ड आफ्टर द इलनेस हैज सेटल्ड, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है। पेशेंट्स विद एक्टिव कोविड है ना, अभी हो रहा है, PCR पॉजिटिव है, उनको तो वैक्सीन नहीं लगाएंगे ना आप, जाहिर है। इंडिविजुअल्स ऑन शॉर्ट टर्म इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन, यानी कि जैसे कि मुझे सिवियर एस्मा का अटैक हुआ और मुझे अभी प्रेडनिसोलोन किसी ने स्टार्ट की फॉर 2 वीक्स, ठीक है? मुझे अभी ओरल स्टेरॉइड स्टार्ट की, या लेट्स से कि मुझे कोई रिएक्टिव आर्थराइटिस हुआ और मुझे किसी ने ओरल स्टेरॉइड्स पे डाला, तो मुझे ना ओरल स्टेरॉइड्स के खत्म होने के
बाद 1 महीने तक वेट करना चाहिए। और इसका रीजन ये है बेटा कि अगर आप इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहे हैं तो व्हाट इम्यूनोसप्रेसेंट डज इज कि वैक्सीनेशन के बाद जो इम्यूनिटी आपकी बननी चाहिए ना वो उसको बनने नहीं देगा। तो व्हाट विल हैपन इज कि अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो और वैक्सीनेट करवाओगे तो वैक्सीनेशन शायद उतनी इफेक्टिव ना हो जितनी होनी चाहिए। सिर्फ ये प्रॉब्लम है। इस वजह से इट इज बेटर कि अगर आप शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड्स किसी को देने जा रहे हो तो वो स्टेरॉइड्स के खत्म होने के 1 महीने के बाद वैक्सीनेशन ले, वरना वो वैक्सीन इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। लेकिन अगर कोई क्रॉनिक स्टेरॉइड्स पे है, जैसे किसी को आईटीपी है या कोई और इशू है जिसकी वजह से ऑनगोइंग सीओपीडी है, एस्मा है बहुत सिवियर किस्म का, और ऑनगोइंग एसएलई है और ऑनगोइंग स्टेरॉइड्स पे है, तो उसमें फिर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं बनती कि आप उनको ना दें वैक्सीन। स्टेरॉइड्स पे पेशेंट्स को वैक्सीन दी जा सकती है लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, ये आपको पेशेंट को बताना जरूरी है कि इट मे नॉट बी इफेक्टिव। ठीक है बेटा, पेशेंट अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो वैक्सीन इन्फेक्शन नहीं कर सकती, वैक्सीन उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, दैट इज द प्रॉब्लम रुशना। ठीक है, ओके। सो व्हाट आर द अदर कॉन्ट्राइंडिकेशन? माइल्ड कोविड-19 के साथ आइसोलेशन पीरियड कंप्लीट हो जाए तो वैक्सीनेट किया जा सकता है। इसीलिए अभी किसी ने पूछा कि अगर कोई इंक्यूबेशन में हो, किसी से एक्सपोजर हुआ हो, तो आई वुड से वेट फॉर अ वीक, आइसोलेशन वाला पीरियड कंप्लीट हो जाता है 1 आध हफ्ते वाला, तो फिर वैक्सीनेट कर दे। ठीक है, ओके। सो समबडी हैज आस्क्ड मी कि अगर 3 हफ्ते के बाद सेकेंड डोज देना चाहिए और 3 हफ्ते बाद सेकेंड डोज नहीं दिया और उसको डिले करके 6 हफ्ते कर दिया तो क्या होगा? तो बेटा कुछ नहीं होगा। देखिए, पहला वैक्सीन का डोज दिया, सेकेंड वैक्सीन का डोज एज अ बूस्टर काम करता है। अगर आपने बूस्टर को 3 हफ्ते की जगह एटलीस्ट 3 वीक्स होता है, अपर लिमिट नहीं है। ठीक है, सेकेंड डोज आप 4 हफ्ते बाद दे दे, 6 हफ्ते बाद दे दे, 8 हफ्ते बाद दे दे, वो फिर भी इफेक्टिव होता है। ठीक है, इसीलिए अगर किसी ने पहला वैक्सीन का डोज लगाया, उसके बाद उसको माइल्ड कोविड के सिम्टम्स आ गए, तो वी वुड टेल देम कि भाई 2-3 हफ्ते रुक के कोविड खत्म होने के बाद वो सेकेंड डोज ले ले। ठीक है, ताकि उसका एक एज अ बूस्टर काम कर जाए सेकेंड वाला डोज, तो यू कैन डिले द डोज। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, राइट। सिवियर कोविड के साथ स्टेबल होने के बाद वैक्सीन ली जा सकती है। ठीक है, तो इवन इन सिवियर कोविड इन्फेक्शन, एक दफा आप क्लिनिकली स्टेबल हो गए, आइसोलेशन कंप्लीट हो गई, 2 हफ्ते में आप वैक्सीनेट करवा सकते हो पेशेंट को, देयर इज नो इशू। क्रॉनिकली इम्यूनोसप्रेस्ड मतलब लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पर जो लोग हैं, दे कैन रिसीव द वैक्सीन, लेकिन एफिकेसी मे बी लोअर। दैट इज व्हाट यू नीड टू टेल द पेशेंट। ठीक है, दोज पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको 3 महीने के ट्रांसप्लांट के बाद वैक्सीन दी जा सकती है। ठीक है, कीमोथेरेपी जिन लोगों को मिल रही है, तो लास्ट डोज ऑफ कीमोथेरेपी के 1 महीने में आप उनको वैक्सीनेट कर सकते हो। ठीक है, सो कोई भी शॉर्ट टर्म इम्यूनोसप्रेसेंट दिया जा रहा है तो उसको आप 1 महीने के बाद इम्यूनोसप्रेसेंट खत्म करने के बाद वैक्सीन देंगे, इट इज बेटर, क्योंकि फिर वैक्सीन इज मोर इफेक्टिव। ड्यूरिंग देंगे तो फिर वैक्सीन की एफिकेसी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, डेस्मोप्रेसिन पे बेटा, डेस्मोप्रेसिन कोई इम्यूनोसप्रेसेंट तो नहीं है ना, सो डेस्मोप्रेसिन से तो कोई ताल्लुक नहीं है। ऑफ कोर्स दे कैन टेक द कोविड वैक्सीन। ठीक है, ओके। सो एस्ट्राजेनेका की कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स पे है कि एस्ट्राजेनेका किन लोगों को नहीं देनी है। लेस देन 40 इयर्स, स्पेसिफिकली विमेन जो है वो, उनको एस्ट्राजेनेका नहीं दी जाती है बिकॉज ऑफ द relatively higher risk of thromboembolism. People with a history of severe allergic reaction to any component जिसमें polysorbate आता है, people who develop clotting disorder with the first dose of AstraZeneca, those having active GI bleeding disorder or seizures, those with history of heparin-induced thrombocytopenia, मतलब कोई भी clotting disorders अगर किसी को रहे हैं या पहले डोज से हुए हैं
या फिर उनकी एज 40 ईयर्स से कम है तो एस्ट्राजेनेका रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, दूसरी वैक्सीन ज्यादा बेहतर है रादर देन एस्ट्राजेनेका। अगर आपके पास चॉइस है तो आपको एस्ट्राजेनेका की जगह कोई और वैक्सीन लेनी चाहिए। चॉइस नहीं है तो फिर एस्ट्राजेनेका भी बेहतर है, क्योंकि वे करें अगर आप रिस्क एंड बेनिफिट्स फिर भी ज्यादा है, रिस्क कम है। No, Uzair, that's a wrong वो कि I think no need of vaccine after recovering from COVID, क्योंकि आपको पता है कि एक कोविड के बाद दूसरा कोविड इन्फेक्शन कोई और वेरिएंट से भी हो सकता है। एंड यू नो कि अगर आप जो है वो डेल्टा वायरस है जैसे, तो डेल्टा वायरस हो सकता है ना, और क्या वैक्सीन आपको डेल्टा वायरस से भी बचाती है। तो अगर आपको कोविड हो भी चुका है तो फिर आप जो है वो ना दें, सॉरी उनको वैक्सीन आप दे सकते हैं, सॉरी आफ्टर अ मंथ। व्हाट वैक्सीन टू गिव इफ क्लॉटिंग अकर्स? बेटा एस्ट्राजेनेका नहीं देंगे, उसकी जगह कोई भी और वैक्सीन दी जा सकती है। यू कैन गिव देम फाइजर, यू कैन गिव देम मॉडर्ना। ऐसे लोग हैं खास तौर पर कुछ बाहर, जस्टिन ट्रूडियो जो हमारे कैनेडियन वो है, उन्होंने पहला डोज एस्ट्राजेनेका का लगाया था और सेकेंड डोज मेरे ख्याल में मॉडर्ना का लगाया था। सो इट हैज बीन शोन कि एस्ट्राजेनेका जिन लोगों ने फर्स्ट डोज लगाया और दूसरा डोज एक डिफरेंट वैक्सीन का लगाया तो इट वाज वेरी इफेक्टिव। ठीक है, सो एस्ट्राजेनेका जिनकी कॉन्ट्राइंडिकेशन बनती है उनको आप सेकंड डोज किसी भी और वैक्सीन का लगा सकते हैं। Patient has been vaccinated with Sinovac 4 months back, now having COVID positive, should he get booster after 2 weeks? तो 4 महीने पहले साइनोवैक के दोनों डोजेस नहीं हो गए थे, एक डोज हुआ था। अगर एक डोज हुआ था तो 2 से 3 हफ्ते के बाद कोविड नेगेटिव हो जाए या कोविड खत्म हो जाए, आइसोलेशन खत्म हो जाए, उसके 2 हफ्ते में जो है वो ही कैन गेट अ वैक्सीन सेकेंड डोज। ठीक है बेटा, ओके। सो कोई भी किस्म की क्लॉटिंग वॉटिंग के मसले हैं ना ब्लड के, तो एस्ट्राजेनेका को अवॉइड कर लीजिए। ठीक है, दैट्स द बेसिक वो। सो देखिए जो हमारा डर है ना वो कुछ हद तक जायज है, कुछ हद तक नाजायज है। ठीक है, क्योंकि हम इतनी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और फिर हम जो है वो वैक्सीन के वो एक रेयर पॉसिबिलिटी से डरते हैं। सो लुक एट दिस, यू नो हर जगह पर इनके सुराख हुए हैं और ये पूछ रहे हैं कि मैं जो है वो नीडल से मुझे डर लगता है, वैसी वाली बात है। हाँ इरफान, ये बड़ा अच्छा सिंध गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है कि ये सिम्स ब्लॉक कर देंगे उन लोगों की जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है, और इनफैक्ट तनख्वाहों से भी कटौती हो जाएगी उन लोगों की जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है। सो बी वेयर ऑफ इट। ठीक है, बेटा डेल्टा वायरस के अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द वैक्सीन आर एफिकेशियस। ठीक है, इट हैज बीन शोन कि डेल्टा वायरस के लिए भी ये वैक्सीन इफेक्टिव हैं। सो प्लीज जो है वो डेल्टा वायरस की वैक्सीन जो है वो भी यही सेम है, अलग से नहीं है कोई। सो यू नीड टू गेट वैक्सीनेटेड। कोविड हो जाता है आफ्टर फर्स्ट डोज क्योंकि एंटीबॉडीज अभी तक हाँ मतलब फॉर्म हुई होती है लेकिन उतनी नहीं हुई होती ना। फर्स्ट डोज उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना सेकेंड डोज के बाद इफेक्टिव हो जाता है, और सेकेंड डोज के भी 2 वीक्स के बाद रुशना, सेकेंड डोज के भी 2 वीक्स के बाद तक एफिकेसी मैक्सिमम होती है। ठीक है, सो इसीलिए पहले डोज के बाद इन्फेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? ओके जी। सो एडवर्स इफेक्ट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, एमआरएनए जो ये फाइजर है ना, तो आप लोग जो बड़ा फाइजर के पीछे भाग रहे हैं, तो इसके साथ भी मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस के कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ठीक है, तो लेकिन वो फिर अगेन देयर सेइंग कि सीडीसी सेज के रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स देखा जाए तो बेनिफिट ज्यादा है, रिस्क कम है। सो स्टिल यू शुड गेट द वैक्सीन डन। ठीक है, फाइजर में, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स आई है मायोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस की। कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हिसाब से, क्योंकि कैनसाइनो और पाकवैक अभी तक WHO अप्रूव्ड नहीं है और इस पे बहुत सारा डेटा नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा केयरफुल है विद कैनसाइनो या पाकवैक इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग वुमेन। तो दूसरी सारी वैक्सीन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन में दी जा सकती हैं, लेकिन कैनसाइनो या पाकवैक जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। Not that it has shown to have some adverse effects, but because we don't have a lot of data on it. ठीक है, yes, ये जो आप हैं DGO, प्लीज अपना नाम लिख दीजिए। पेरिकार्डाइटिस मायोकार्डाइटिस से बेटा माइल्ड केसेस रिपोर्ट में है, डेथ्स नहीं रिपोर्ट हुई है, दीज आर माइल्ड केसेस। ठीक है,
facial palsy after Pfizer Javeria, it's not that common. इस वजह से जो है वो it is not a contraindication या ऐसा कोई specific वो नहीं आया इसके बारे में कोई गाइडलाइन. CanSino is safe. देखिए इसमें ना हिस्ट्री ऑफ एजमा में कैनसाइनो को अभी इन्होंने होल्ड किया हुआ है. द रीजन इज प्रोबेबली के एजमेटिक्स जो होते हैं ना वो ज्यादा एलर्जीज भी शो करते हैं ना, उनको स्किन एलर्जीज भी होती हैं जनरली, उनको जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी होती है. इस वजह से क्योंकि वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ डेटा ऑन कैनसाइनो एंड पाकवैक, इसीलिए हमें पता नहीं है कि एजमा में उसकी कितनी एफिकेसी है या कोई हाइपर सेंसिटिविटी ना हो. इस वजह से टू बी वेरी वेरी सेफ ना इन्होंने एपिलेप्सी, ब्रेन डिजीज, कन्वर्जन, एजमा और प्रेगनेंसी लैक्टेशन में पाकवैक को जो है वो अभी फिलहाल होल्ड किया हुआ है. Is it true that all the vaccines have emergency approval and not full official WHO CDC approval? बेटा yes, to some extent that's right. लेकिन ये जो emergency approval है ना, ये भी कोई ऐसा नहीं होता कि आपने पैसे खिला दिए या आप चले गए और आपको approval मिल गया. उसमें भी multiple जो है वो आपके data देखा जाता है, evidence देखा जाता है, research देखी जाती है, तो ऐसा नहीं है. सादिया, options for above 18 asthmatics, Sinovac, Sinopharm, एस्ट्राजेनेका और इसके अलावा जो है वो फाइजर, मॉडर्ना कोई भी लगाई जा सकती है. ठीक है, सिर्फ साइनोवैक और पाकवैक, कैनसाइनो एंड पाकवैक, कैनसाइनो एंड पाकवैक ली जाती है. अनाया, is there any third dose after initial 2 doses? अभी नहीं पता हमें, we are not really sure. लेकिन जैसे मैंने कहा कि mRNA वैक्सीन्स और जो आपकी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स है जिसमें साइनोवैक, साइनोफार्म, फाइजर, मॉडर्ना, इनमें जो है वो बूस्टर्स की नीड होगी क्योंकि इसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, आपको बूस्टर्स देने पड़ते हैं. ठीक है, एस्ट्राजेनेका में, कैनसाइनो में बूस्टर्स की नीड रिलेटिवली लेस. यार ये इम्पोर्टेंसी जो है ना गुलशन, एक तो ये यार हो ही ना जाए लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को इम्पोर्टेंट इस पॉपुलेशन रेट के साथ, पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब सारी बातें एक तरफ और इम्पोर्टेंसी एक तरफ हमारी, है ना हुमा. साइनोफार्म इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट. नो, दैट्स नॉट ट्रू रिश्ना, ऐसी कोई खबर नहीं है और ऐसी कोई चीज जो है वो ऑफिशियल एजेंसीज नहीं कह रही. जनरल साइड इफेक्ट्स, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एट इंजेक्शन साइट, फीवर, माइल्जिया, हेडेक, ये तो आपने जनरली पेशेंट्स में सुने ही होंगे. ठीक है, ये तो बताते हैं हमारे सारे पेशेंट्स, थोड़ा बहुत हेडेक वेडेक होना, हल्के फुल्के से सिम्टम्स होना जो कि किसी भी वैक्सीन में होते हैं, तो वो इसमें भी होते हैं. मसला ये है ना कि हमें ये परवाह नहीं है कि हम खाने में क्या खाते हैं, हम दवाइयां कितनी खा रहे हैं, पॉलीफार्मेसी कितनी कर रहे हैं, क्या क्या हमारे ब्लड में जाता रहता है, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं. लेकिन जो है वो इसकी एक एक जो है साइड इफेक्ट पे हमारी नजर है ना. ये जैसे कार्टून आपसे कह रहा है ना कि सारे वो कि जैसे ही हम साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं फौरन दिमाग में आता है वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स है. nausea, dizziness, yes, Amna, to some extent I would agree, लेकिन इतना ज्यादा नहीं. How long will immunity remain after fully vaccinated? We don't know. बेटा अभी हमें नहीं पता, अभी long term studies होंगी ना. अभी हमने दिसंबर जनवरी से वैक्सीनेट करना शुरू किया है, तो आई थिंक अभी 1-2 महीने में हमें 6 महीने की इम्यूनिटी पता चलेगी. जिन लोगों को जनवरी में वैक्सीन लगाई गई थी, यूके में स्टार्ट हुई थी, तो उनकी अब 6 महीने की इम्यूनिटी हमें पता चलेगी कि उनमें कितना कोविड का अब इंसिडेंस है, तो उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि कितने अरसे तक वैक्सीन इफेक्टिव रहती है ना. सो अभी it is going to take some time to know results of long term vaccination के बाद क्या होता है, right? So इसका जवाब बता दीजिए जी. Which of the following vaccines is not recommended during pregnancy due to insufficient evidence? अभी मैंने आप लोगों को बताया है, so अभी जवाब बता दीजिए इसका जल्दी से. सादिया, I think it's just a coincidence. She's asking कि 2-3 दिन के बाद लोगों को कोविड डेवलप हो जाता है, प्रॉब्ली उनका इंक्यूबेशन चल रहा होगा और they don't know. तो ऐसा होता है, कभी कभार आप सुन लेते हैं ऐसा केस, लेकिन वो इतना उसको उछालते हैं ना कि सबको ऐसे लगता है कि वैक्सीन के बाद हो गया, हालांकि जो है वो इतना कोविड हो रहा है आजकल के बहुत चांसेस है ना कि किसी को वैक्सीन के बाद भी हो, राइट. डी, यस, कैनसाइनो जो है वो अभी फिलहाल के लिए अप्रूव नहीं है प्रेगनेंसी लैक्टेशन में, लेकिन अगर WHO अप्रूवल आ गया तो हो सकता है हो भी जाए. 2 डोजेस के बाद भी अगर कोविड किसी को हो जाता है तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बेटा उनसे कहिए कि
चांसेस है कि सिवियरिटी ऑफ डिजीज कम होगी। 100% तो कुछ नहीं है। मैं हमेशा अपने पेशेंट से कहती हूँ कि देखिए अल्लाह की जात के अलावा 100% तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर हो भी गया कोविड तो उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी सिवियरिटी है, वो रिलेटिवली आपको कम होगी। एंटीबॉडीज सभी चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी बताया कि एंटीबॉडीज जो है वो कभी कभी नेगेटिव भी आ रही होती है, स्टिल यू आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, यस आदि, आई एग्री विथ यू। तो इसका आंसर इज कैंसाइनो, राइट। ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्रेगनेंसी, ये देख लीजिए, मॉडर्ना, फाइजर, J&J एकदम शुड बी गिवन है, इस पे बहुत डेटा है। CDC भी कह रहा है प्रेगनेंसी लैक्टेशन में फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन तीनों में से कोई भी दी जा सकती है। एस्ट्राजेनेका का प्लस माइनस है, डिस्कस द रिस्क एंड बेनिफिट्स। अगर आपके पास ऑप्शन है अवेलेबल मॉडर्ना फाइजर का तो वो दे दीजिए। CanSino, Parkvac are not recommended for now. Sinopharm, Sinovac लैक्टेशन में तो आराम से दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में अभी बहुत सारा डेटा नहीं है हमारे पास, लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो अपनी गाइडलाइंस दी हैं उसमें उन्होंने साइनोफार्म और साइनोवैक दोनों को सेफ कहा है इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। सो साइनोफार्म एंड साइनोवैक कैन बी गिवन। ठीक है, ओके जी। कैन वी रिपीट द वैक्सीनेशन आफ्टर 3 months? पता नहीं यार, आई डोंट नो। बूस्टर हो सकता है बूस्टर की तरह काम करे, लेकिन बेटा देखिए जब आप बहुत सारे लोगों का फायदा सोचते हैं ना, तो यहाँ पर इशू क्या है कि हमारे पास वैसे ही वैक्सीनेशन की सप्लाई कम है। ओनली about 5 to 10% of people in Pakistan have yet been vaccinated. इसमें जो है वो आप 2 डोजेस ऑलरेडी ले चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए तीसरा डोज भी ले लूं, तो यकीनन आप किसी ना किसी का हक मार रहे हैं जिसको पहले डोज की जरूरत है। थिंक अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि बहुत हमारे पास सप्लाई कम है। आपको पता है बीच में बंद भी हो गई थी क्योंकि सप्लाई आनी बंद हो गई थी। सो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाए, एटलीस्ट विद फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज, ताकि जो है वो हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो ना। हर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड होने चाहिए, उससे जो लोग नहीं होते हैं वैक्सीनेटेड वो भी बच जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आवर एम शुड बी, रादर देन थिंकिंग अबाउट कि हमने 2 डोजेस लगा लिए, अब हम जो है वो फाइजर ट्राई करके देखते हैं, वो भी लगा लेते हैं, या हम एक तीसरा बूस्टर का डोज जो है वो चलाकी करके लगा लेते हैं। सो आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट द जनरल population. So that is the whole point. I know a lot of patients ask us about these things, so we should know what to reply, है ना। A 35 years old lady has completed chemotherapy for breast cancer 2 weeks back. She asks you about COVID vaccine. What is the best advice? जी इसका आंसर बताइए जी, आंसर बता दें जल्दी से। Advice: COVID antibody, immediately vaccinated if negative. She should get any vaccine after 3 months. She can get a vaccine now. She should not get vaccinated if she's on continuous hormone therapy. She should be prescribed the mRNA vaccine after a month. उजैर के 2 हफ्ते हुए हैं ना, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 महीना वेट करते हैं। सो 28 डेज था ना, 28 डेज था, तो 1 महीने के बाद mRNA वैक्सीन आई थिंक बेस्ट चॉइस है इनके लिए, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा एविडेंस है एफिकेसी का, एंड शी प्रोबेबली नीड्स अ वेरी इफेक्टिव वैक्सीनेशन। और क्योंकि mRNA वैक्सीन पे ज्यादा एविडेंस है, इट इज वेरी एफिकेशियस, तो 1 महीने में इनको mRNA वैक्सीन लगानी चाहिए। ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा, who can get Pfizer, Moderna? अब मैं आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान में फाइजर और मॉडर्ना भी अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन ये सबको नहीं दी जा रही है क्योंकि इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत मिनिमम है, वो कम है। तो ये सिर्फ उन लोगों को दी जा रही है जो कि ज्यादा जिनको जरूरत है अच्छी वैक्सीन की। ठीक है, तो इम्यूनो सप्रेस्ड जो है वो लोगों को, सो गैलेक्सी A50, प्लीज अपना नाम लिख दीजिए सो दैट आई कैन कॉल यू बाय योर नेम। बेटा एजमेटिक है ना, तो एजमेटिक है साइनोवैक, साइनोफार्म, कैनसाइनो, पार्कवैक। पार्कवैक नहीं लगा सकते, पार्कवैक कैनसाइनो के अलावा साइनोफार्म, साइनोवैक लगा सकते हैं। They can also get him
फाइजर वैक्सीन और मॉडर्ना वैक्सीन। ठीक है, तो ये इंडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो इम्यूनो सप्रेस्ड है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस जिसमें जो है वो एजमा अगर अनकंट्रोल्ड है तो उनके लिए ज्यादा ये जाहिर है इंपॉर्टेंट है। क्रॉनिक हार्ट डिजीजेस, वैस्कुलर डिजीजेस, क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक लिवर डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, रेस्पिरेटरी फंक्शन जिसका कॉम्प्रोमाइज है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में है, इन सब लोगों के लिए mRNA वैक्सीन आर इंडिकेटेड क्योंकि इट इज थॉट टू बी मोर एफिकेशियस। ठीक है, तो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उन्होंने जो mRNA वैक्सीन रखी हुई है वो इन लोगों के लिए आप प्रिस्क्राइब करके लिख के दे सकते हो कि दे नीड एन mRNA वैक्सीन। साइनोवैक बेटा होल एम्प्यूल या वो सदफ ये तो मुझे नहीं पता है कि किस तरीके से होता है। ये तो आपकी जो वैक्सीन आती हैं सेंटर्स में तो वो किस तरीके से उसको डिवाइड करते हैं, एक वायल में कितना होता है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। ट्रैवलर्स में भी जाहिर है mRNA वैक्सीन प्रेफर्ड है क्योंकि जो आपकी एयरलाइंस है, एयरलाइंस में जो है वो कुछ एयरलाइंस ऐसी हैं जो कि ट्रैवलर्स में स्पेसिफिक वैक्सीन का ही वो करती है। ठीक है, तो उसमें जो है वो आप सो ये देखिए इम्यूनो सप्रेशन अगर हुआ है, सिस्टमिक स्टेरॉइड्स पर आप हैं, कोई मेलिग्नेंसी है, SLE है, एस्प्लेनिया है, डिसफंक्शन ऑफ स्प्लीन है और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जिनकी वैक्सीनेशन फॉर ट्रेवल, तो उनको भी जो है वो दे सकते हैं। यस रुमैसा, आई एग्री विथ यू, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि mRNA वैक्सीन की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है तो इसके बूस्टर की नीड पड़ सकती है। बिल्कुल, इसके बूस्टर की नीड 1 साल बाद हो सकता है देना पड़े। सिमिलरली फॉर साइनोवैक एंड साइनोफार्म उनका भी बूस्टर देना पड़ेगा, लेकिन कैनसाइनो, पाकवैक और एस्ट्राजेनेका उनका अनलाइकली है कि बूस्टर की जरूरत पड़े। हाँ उजैर, बहुत सारी जगहों से फाइजर मिल रही है, कराची में भी मिल रही है, लेकिन फॉर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि ये सारी इंडिकेशंस के साथ हो। बेटा डेस्मोप्रेसिन का कोई इशू नहीं है सारा, डेस्मोप्रेसिन इज नॉट एन इम्यूनोसप्रेसेंट। ठीक है, तो उसमें कोई भी वैक्सीन ली जा सकती है। 15 ईयर ओल्ड है तो आपको पता है कि 18 ईयर्स तक तो वैक्सीन जो है वो सिर्फ फाइजर इंडिकेटेड है, तो फाइजर, लेकिन पाकिस्तान में अभी 12 साल से बड़े बच्चों के लिए नहीं, इट्स नॉट ओपन। ठीक है, 20 ईयर्स अबव पे ही है अभी तक, तो बच्चों के लिए नहीं है। इस वजह से जो है वो सारा, अगर आप पाकिस्तान में हो तब तो आप नहीं लगा सकते इस बच्चे को फाइजर, लेकिन बाद में लगा सकते हो, 18 ईयर्स से अबव हो तो लगा सकते हो। हाँ, सो असरा, यू प्रोबेबली जॉइंड इन लेट जब हम मोड ऑफ एक्शन डिस्कस कर रहे थे सारी वैक्सीन का, तो वी हैव डिस्कस्ड कि इनकी जो इम्यूनिटी होती है कैनसाइनो, पाकवैक और एस्ट्राजेनेका की, ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है और इनकी लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी अच्छी होती है, सो यू डोंट नीड अ बूस्टर। अरे वाह भाई, एबटाबाद में मॉडर्ना दी जा रही है सबको, तो जो है वो चलो चलो एबटाबाद चलो, है ना अनाया, हम सब एबटाबाद आ जाते हैं मॉडर्ना लगाने के लिए। अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है ना बेटा अनाया, आप लोगों के वहां पर मॉडर्ना आई होगी बहुत ज्यादा। इंडिविजुअल विद मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो अदर सिवियर कंडीशन जिसमें जो है वो अगर इंडिकेटेड नहीं है, जैसे किसी को पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस है, तो फिर आप जो है वो फाइजर ना दें, लेकिन अगर कोई और क्रॉनिक डिजीजेस है तो उसमें फाइजर इंडिकेटेड है, राइट। ओके, सॉरी, आंसर तो बता दिया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन, ठीक है, तो ये वाला जो है वो क्वेश्चन का जवाब बता दीजिए, वो विच वन इज ट्रू रिगार्डिंग मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन। जिन लोगों ने ऑलरेडी आंसर नहीं देखा है प्लीज रीड कर लें एक दफा सारे ऑप्शंस को, सो दैट यू नो। सो इट इज बेसिकली WHO डज नॉट रिकमेंड मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन रूटीनली, ठीक है, इट इज ऑलरेडी दैट्स समथिंग व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो कोई भी ऐसी मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन जो बेसिकली जो एक मोड ऑफ एक्शन की वैक्सीन होती है ना, जैसे कि साइनोवैक और साइनोफार्म है, तो वो अगर अवेलेबिलिटी ना हो तो फिर बेहतर है कि आप उसी मोड ऑफ एक्शन वाली वैक्सीन को लगा लें, दूसरे वैक्सीन को ना लगाएं, क्योंकि उससे फिर क्या होगा कि उसका फिर सेकेंड डोज भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यू गॉट मिक्स्ड वैक्सीन द डे बिफोर WHO अनाउंसेस, ठीक है जवेरिया। तो आई थिंक कि बहुत सारे लोगों ने लगाई है, जैसे मैंने कहा कि कैनेडियन प्रेसिडेंट ने भी लगाई है, मेरे ख्याल में यूके के भी लगाई है प्रेसिडेंट ने 2 वैक्सीन। तो पहली एस्ट्राजेनेका जिन लोगों ने लगाई, फिर उनको जब साइड इफेक्ट्स का पता चला तो उन्होंने सेकेंड वैक्सीन जो है वो मॉडर्ना या फाइजर लगाई है, तो वो भी मतलब इट वॉज इफेक्टिव।
Yes, it is better to avoid mixing. It is better to avoid mixing. ठीक है? So WHO warns against mixing vaccines क्योंकि effectiveness नहीं पता आ दिया, हमारे पास कोई डेटा नहीं है ना, तो रिसर्च नहीं हुई, हमें पता नहीं effective होगी या नहीं होगी, बूस्टर कितने चाहिए, कितने लगाने पड़ेंगे, इसलिए it may increase side effects. ठीक है? ये वजह है. AstraZeneca first dose followed by Moderna और Pfizer has shown to be more effective. ठीक है? तो ये भी जिन लोगों ने AstraZeneca का पहला डोज लेके दूसरा डोज लगाया Pfizer और उसका, तो उनको पता चला कि भाई वो more effective है. So we don't know, really we don't know. So इस वजह से जो है ना, it is better to avoid it जितना possible हो सके, right? Okay, so again this is just एक break है ये. So yes, Asim, I agree. It is better to avoid. इसका जवाब बताइए भैया. 45-year-old male not vaccinated previously with mild COVID infection, asymptomatic for last 1 week. He asks you about vaccination. What is the best advice for him? जी जवाब दीजिए जी. B. He can get vaccinated at least 2 weeks of being asymptomatic. Yes, अब सबको आ गया. अब जवाब जो है वो ज्यादातर लोगों को आ गया है. जबरदस्त. ठीक है, तो अब आप लोग सारे वैक्सीनेशन एक्सपर्ट्स हो गए और अब आप लोग जो है वो अपने रिलेटिव्स को अपनी सारी जितनी नॉलेज आप यहाँ से लेके जा रहे हैं तो वो अच्छे से अब आप उनको बता सकते हैं. If someone gets both doses of Sinovac and then gets some other vaccine somehow, very mean, so it will have adverse effects too. Not really. Rushna, we don't know. We don't know. The answer is we don't know. लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए. It's very mean of him. Okay, vaccination is indicated after completing isolation period in mild COVID and after becoming clinically stable after severe COVID. ठीक है, अपने कजन से कहिए दूसरों को भी मौका दे दे भाई. मतलब वैक्सीन वैसी कम है पाकिस्तान में. फुप्पू और खाला को समझाना अब आसान हो गया आप लोगों के लिए. बिल्कुल, फुप्पू खाला नहीं समझती भाई, पूरी दुनिया समझ जाए. मैम, आफ्टर सिवियर COVID-19 इन्फेक्शन आर देयर एनी स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज टू अवॉइड वैक्सीन? नहीं बेटा, देखिए आफ्टर बिकमिंग क्लिनिकली स्टेबल. ठीक है, क्लिनिकली स्टेबल आई वुड से 2 to 3 weeks. ठीक है, 2 to 3 weeks में जो है वो आप लगा सकते हो. महीने तक रुकना चाहो रुक सकते हो क्योंकि एंटीबॉडीज तो है ना आपके पास जवेरिया, तो वेरी लाइकली कि 1 महीने तक तो आपको वापस इन्फेक्शन नहीं होगा, तो 1 महीने रुक जाइए, 1 महीने के बाद वैक्सीन लगा लीजिए. ठीक है, सो अब देखिए ना कौन कौन लोग साइड इफेक्ट्स की बातें कर रहे हैं. कौन कौन लोग साइड इफेक्ट्स की बातें कर रहे हैं. जो हम जैसे लोग, जो पाकिस्तानी, हम जो हर तरह का खाना खाते हैं और हर उल्टी सीधी चीजें हमारे पेट में और बॉडी पे लगती हैं, एनवायरनमेंट हमारा पोल्यूटेड, सब गड़बड़, लेकिन हम जो है वो क्या सोचते हैं, पता नहीं वैक्सीन से हम क्या बन जाएंगे. Okay, so 55-year-old lady with spinal stenosis and severe backache for 6 months is due for an epidural steroid. What is the best advice for her? ठीक है, तो ये एक टॉपिकल स्टेरॉइड है जो इनको लगने जा रहा है. तो जाहिर है कि एपिड्यूरल स्टेरॉइड की वजह से भी कुछ इम्यूनोसप्रेशन तो होगी ना, तभी तो वो पेन के लिए वर्क करेगा. तो क्या उसको एडवाइस आप करोगे? What is the correct answer? B, E, E. If pain is excruciating, get the epidural now and vaccine after a couple of days. couple of days बेटा, 2 दिन में तो जो है वो खत्म नहीं होगा ना उसका इफेक्ट. 2 दिन में तो इम्यूनोसप्रेशन का इफेक्ट खत्म नहीं हो जाएगा ना. डिले द एपिड्यूरल फॉर 2 to 3 weeks if possible and get the vaccine. तो पहले वैक्सीन लगा लीजिए और 2 से 3 हफ्ते के बाद जो है वो एपिड्यूरल लगाइए. ठीक है, अगर आप कर सकते हैं डिले तो. ठीक है जी मारिया. आइसोलेशन पीरियड फॉर सिम्टोमेटिक एंड एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को जो है कोविड हुआ हुआ है, सो वी ऑलरेडी डिस्कस दैट कि जिनको कोविड हुआ हुआ है तो वो जब तक स्टेबल नहीं हो जाते तब तक वैक्सीनेशन ना लगाएं. दैट इज द रेकमेंडेड पीरियड. ठीक है, कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज नहीं है. ठीक है, तो इसका आंसर इज बी, delay the epidural for 2 to 3 weeks if possible and get the vaccine first. ठीक है, तो जो again risk versus benefits.
Sahi. So a 20 years old female needs a vaccine for hepatitis B. She got second dose of vaccine 2 days back. What is the best advice? तो अगर कोई और वैक्सीन लगाना है और ऑलरेडी जो है वो कोविड वैक्सीन अभी लगा है रिसेंटली, तो कितना वेट करना चाहिए बिफोर गिविंग अनदर वैक्सीन? बताइए. यस, दैट्स राइट. आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग. डिले हेपेटाइटिस वैक्सीन फॉर 2 वीक्स. ठीक है, तो 2 हफ्ते के लिए दूसरी वैक्सीन को डिले कर दें, कोविड वैक्सीन लगा के, और दूसरी वैक्सीन लगानी है वो 2 हफ्ते के बाद लगाएं. राइट, जस्ट सो दैट इट डजंट इंटरफियर विद द इम्यूनिटी डेवलपमेंट. इट्स जस्ट दैट. ठीक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इम्यूनिटी डेवलपमेंट नहीं होती. 25 years old male comes to you with minor abrasion after a RTA, road traffic accident, 2 hours back. He got vaccinated for COVID 2 days back and is unsure about tetanus vaccination status. What is the best advice for him? तो रोड पे इनको लगा है, abrasion हुई है, bleeding हुई है, और ये आपसे पूछ रहे हैं कि मुझे वैक्सीनेशन 2 दिन पहले ही लगी है, तो मुझे टेटनस वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं? क्या है एडवाइस? Nadeem says give him tetanus toxoid. Okay, that's right, correct. तो 2 हफ्ते ऑलरेडी नहीं हुए हैं, हालांकि अभी हमने डिस्कस किया कि दोनों कोविड वैक्सीन और किसी और वैक्सीन में 2 वीक्स का फर्क होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर अगर आप अगेन रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स देखें ना, तो मसला क्या है कि वो टेटनस से ना मर जाए ना. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, ऑफ कोर्स इट्स अ कंटामिनेटेड वुंड, ठीक है, और फिर ऊपर से उसको टेटनस का वैक्सीन का स्टेटस भी नहीं पता है. सो इट इज बेटर कि उसको आप टेटनस वैक्सीन लगा दें. ठीक है, सो again the purpose of bringing you these best choice answers, best choice questions are to make you think कि हर केस में एक डिसीजन आपके ऊपर है, weighing the risk and the benefits. So do the best for your patient. Think what is the best strategy. ठीक है, इसमें ये सोचा करें. यस उजैर, नहीं वैक्सीन तो लग गया है ना उसको पहला डोज, तो अब आप सेकंड डोज एज अ रूटीन वैक्सीन का लगाएं 4 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद, लेकिन उसको अभी फिलहाल टेटनस का वैक्सीन दे दें. ठीक है उजैर. So we do not have much information regarding safety and efficacy of COVID-19 vaccines when they are administered with other vaccines. The CDC recommends a 14-day buffer between shots. ठीक है, तो 14-day interval between shots होना चाहिए. In an emergency, it is okay to disregard the 14-day rule, for example, tetanus. ठीक है, समझ आ गई? ओके जी, इसका जवाब दे दीजिए. A 32 years old lady with controlled rheumatoid arthritis takes methotrexate for last 2 years. What is the best advice regarding COVID vaccine for this patient? A very, very common scenario. Rheumatoid arthritis patient, methotrexate ले रही है. You know methotrexate is an immunosuppressant. ठीक है, तो इनके लिए बेस्ट एडवाइस क्या होगी? ये recent guidelines आई है American College of Rheumatology की तरफ से, and it says that what? So people are saying E, few people are saying B. So जो recent guidelines आई है, it says that कि 1 हफ्ते का methotrexate का डोज after taking the vaccine stop कर दें. The reason is कि वैक्सीन का जो immunity response होगा ना, वो methotrexate suppress कर देगी. So just for a week time आप methotrexate, अगर controlled disease है, ठीक है, if it's controlled, तो कंट्रोल डिजीज में आप मीथोट्रेक्सेट को 1 हफ्ते के लिए आफ्टर टेकिंग द वैक्सीन 1 डोज उसका मिस कर दें. ठीक है, गॉट इट? दीज आर द रीसेंट अमेरिकन कॉलेज ऑफ र्यूमेटोलॉजी गाइडलाइंस. सो ये जो है वो गाइडलाइंस है. प्लीज जो लोग स्क्रिबलिंग कर रहे हैं गलती से, वो प्लीज स्क्रिबल ना करें मेरी स्क्रीन पे. सो ये देखिए कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, स्टेरॉइड्स के साथ कोई मॉडिफिकेशन की नीड नहीं है. अगर क्रॉनिक कोई इन ट्रीटमेंट पर है, दे कैन कंटिन्यू विद द ट्रीटमेंट एंड टेक द वैक्सीन. सल्फासैलाजीन, लिफ्लुनामाइड, एज़ाथायोप्रिन में भी कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है. सिर्फ मीथोट्रेक्सेट में दे आर सेइंग कि मीथोट्रेक्सेट के साथ अगर आप जो है वो 1 वीक के लिए
आप सेकेंड डोज ऑफ द वैक्सीन जब लगाते हैं तो उसके 1 हफ्ते के लिए मीथोट्रेक्सेट को रोक दीजिए, और अगर जो है ना वो सिंगल डोज वाली वैक्सीन है तो फिर 2 हफ्ते के लिए मीथोट्रेक्सेट ना दें इफ पॉसिबल, स्टेबल डिजीज में। अनस्टेबल डिजीज है, ऑलरेडी पेन ज्यादा हो रहा है, तो फिर आप ना रोकें, ठीक है ना, फिर वो पेशेंट को बता दें कि एफिकेसी इतनी अच्छी नहीं होगी वैक्सीन की, राइट। NSAIDs और एसिटामाइनोफेन, पैरासीटामोल एंड NSAIDs, क्योंकि ये भी इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, इस वजह से आपको 24 आवर्स तक NSAIDs और पैरासीटामोल को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अनदर थिंग कि जब आप वैक्सीन जिस दिन लेते हैं तो 24 घंटे के लिए आप जो है वो NSAIDs और एसिटामाइनोफेन ना लें, ठीक है। So these are just, you know, it's all common sense. You don't need to remember all these things, लेकिन just sort of you need to know कि भाई ये इम्यूनोसप्रेसेंट है ना, इसको थोड़ा सा वैक्सीन से दूर कर देना चाहिए ताकि वैक्सीन का इम्यून रिस्पॉन्स अच्छे से क्रिएट हो सके। Not that it's going to lead to side effects or an infection, but it's not going to build up a good immunity if you're on an immunosuppressant. असना पैरासीटामोल वैक्सीन के बाद ना वैसे भी नहीं लेनी चाहिए, इट इज नॉट इंडिकेटेड। वो हम सिर्फ उस वक्त देते हैं अगर किसी को फीवर हो जाता है, वो फीवर तंग कर रहा है तो फिर ले ले, या बहुत ज्यादा सिवियर बॉडी एक्स है तो ले ले, अदरवाइज इट इज बेस्ट नॉट टू टेक पैरासीटामोल। अब तो बच्चों को भी हम नहीं देते आफ्टर EPI वैक्सीन, कि जब तक फीवर अगर आपको ना हो और वो भी 100 से ऊपर ना जाए तो फिर आप पैनाडोल ना लें, ठीक है ना। सो इट इज नॉट जनरली रेकमेंडेड आफ्टर वैक्सीनेशन, इट इज बेस्ट टू अवॉइड इट ताकि वो इम्यूनिटी को आप डेवलप होने दें। सो वी आर डन विथ आवर वैक्सीनेशन। हाँ, अरीबा लेते हैं पेन के लिए क्योंकि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है ना, बट इट्स जस्ट दैट यू शुड अवॉइड इट, है ना। आप लोगों को अलग से मतलब प्रिस्क्रिप्शन ना लिख के दिया करें कि वैक्सीनेशन के बाद पैनाडोल रूटीन में यूज करें, ना यूज करें। इफ यू डोंट नीड इट, डोंट यूज इट, ठीक है। सो दीज आर जस्ट गाइडलाइंस। एंड ये देखिए ये वाली बात है ना, ये जो हम बातें सुनते रहते हैं, इनफर्टिलिटी, इम्पोर्टेंस, माइक्रोचिप्स हैं, पता नहीं किसने, बिल गेट्स ने माइक्रोचिप्स डाले हैं, आई हर्ड दे गॉट ऑटिज्म। तो ये बड़ा जरूरी है टू अवॉइड दिस, यू नो, whatever you hear to develop a herd immunity, ठीक है ना। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजों को प्लीज अवॉइड करें, सुनाई बातों को। हम लोग फ्लैग बेयरर्स हैं, वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ पेशेंट केयर। हमें जो है वो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। कोई भी चीज जो हम कह देते हैं चलते फिरते, वो लोगों के दिमागों पर असर कर जाती है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब डॉक्टर्स ये कर रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं लगा रहे तो हम क्यों लगाएं, डॉक्टर्स ने तो नहीं लगाया, वो डॉक्टर है, मेरे खानदान में वो डॉक्टर है, उसने नहीं लगाया तो उसको तो सही पता होगा ना, ठीक है। फॉर सेकेंड मैरिज इज वैक्सीन नेसेसरी, यस एब्सोल्युटली, ये भी गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में रूल कर देना चाहिए कि सेकेंड शादी के लिए भी नहीं, पहली शादी के लिए भी वैक्सीन जरूरी कर दे, ताकि लोगों को जो है वो अवेयरनेस हो, बिकॉज स्टिल पीपल आर नॉट गेटिंग द वैक्सीन एंड I am afraid that quite a few of them are doctors जो नहीं वैक्सीन ले रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर हारून। मैं सिर्फ थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोगों को फैमिली मेडिसिन में व्हाट्स न्यू के बारे में बता दूं। आई एम नॉट गोइंग टू गो ऑन एंड ऑन, मैं सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को फैमिली मेडिसिन के जो न्यू डेवलपमेंट्स हुई है लास्ट 1 ईयर में, उसके बारे में क्विकली बता देती हूँ, सो दैट यू हैव एन आइडिया व्हाट टू एक्सपेक्ट। आई एम